basics of financial management with a lot of case studies, how money multiplies money, and how we can implement those financial management tips, financial management technique, personal and professional life. As much as we will do. सर आपका आवाज कट रहा है. Sorry. As much as we will do, that much effective outcome we will get as far as finance is concerned, as far as managing is concerned. आपका आवाज कट रहा है और आपका वीडियो भी पॉज हो रहा है बार बार. Okay. Connectivity तो perfect है. Wait. Thank you. So what I was reminding you all, in previous session we have seen how the financial management is useful for us in our personal and professional life. We have also seen different case studies, how the corporate houses who have followed financial management or corporate finance, they have successful in their journey of business, and today they are really big business icons across the globe, and who have not followed, they face lot of challenges, and many of them, they have seen the bankruptcy also. Their companies after serving a long time are either or they are in verge of liquidation. So today we will be going to check their practical applicability, how this entire financial management or world of finance work. I told you the very basic example that once your money start earning money for you, then and after that only you will think that, and you will really going to be rich in your life or in your personal and professional career. Sir, your audio is not audible. Wait, it will come, don't worry. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, बहुत ब्रेक होके आ रहा है आपका वॉइस, नहीं समझ रहा है कुछ भी. हाँ सर, आप अभी तक जो बोले कुछ सुनाई नहीं दिया ना कुछ समझा. हाँ सर, from the starting. I was revising the thing that during previous session of financial management or corporate finance, we have seen how the finance is important in our personal and professional life, how the finance, different case studies we have seen, how the big companies also who have not followed financial management appropriately, they face lot of challenges, and those who have accepted it appropriately, they are big business icons nowadays. We also understand when our money start earning money, since then only we will become rich. Am I clear to you all? ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी. हाँ सर. ठीक है. So today we, as the person of finance, or when it comes to practicality of it, it's very important we should know how the finance or entire finance industry or banking industry works. Can anybody tell me what is the base? Okay, when we say that money earns money, I've given you the best example of banking system, because they never put their own fund. It's all funds they generate. They always lend the money at higher rate, and they always borrow the money at lower rate. And this all margin, they earn huge chunk of earning. And that is why you must seen 10 or 15 years back, there were not a single HDFC bank, and today you will see they are mushrooming like anything. उनका खुद का funding zero है. This is the power of finance. This is the power of money multiplier theory.
Okay, so can you tell me what actually works there in finance industry or industry of finance? Anyone? ये पूरा व्हील जो है ऑफ फाइनेंस कैसे काम करता है? What is the base of it? Any of you? सर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, यानी क्या? किस पे वो पूरा फाइनेंशियल इंडस्ट्री काम कर रहा है आज के डेट पे? नॉर्मल पब्लिक का इन्वेस्टमेंट। Public investment is one junction of it, or सेविंग से इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट, या तो फिर क्या बोलते हैं, बोरोइंग एंड लैंडिंग। प्रॉफिट अर्न होगा। वो जो तो मैंने प्रॉफिट आएगा बोला वो ना, सेम बोरोइंग प्रॉफिट एंड से। लैंडिंग किस बेसिस पे उनका इनकम जनरेट होता है? कौन सा फैक्टर होता है? इतना मैंने हिंट दे दिया आपको। इंटरेस्ट। Yes, the right answer is interest. So entire things, yes, rate of interest. Okay, you always find, and how this work. Okay, how this work. Okay, that is also very important. And this all, things, interest and values or money. This all is given as a nomenclature in this particular subject as time value of money. What is the nomenclature given to this? Time value of money. How many of you are aware about time value of money? Present value of money or future value of money? कितने सारे बच्चों को पता है? वही ना जो एन्युटी और सबके साथ होता है। हाँ, annuity is multiplication. Every time there is a multiplication. अलग जब कॉन्सेप्ट होते हैं तो ये सब साथ में लेते हैं। Yes, but that is also a part of time value of money. But the basic is basic time of value of money, which talks about present value and future value of money. Okay. Okay. Tell me, when we talk about your money of today, suppose you have invested 100 or 200 rupees, okay, as if now, what will be the value after a year? Sir, it depend upon the rate of interest. So, how much rate of interest you expect for your, understanding? Let me take rate of interest will be, say for example, easier calculation 10%. Then तो सर 11 रुपीज हो जाएगा। 11 होगा या 110 होगा? 10 सर 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सर ये 100 रुपीज दिया कि 100 10 का रुपीज लिया सर। 10% तो अच्छा 11 सर, होगा मैंने या 110 10 होगा? सोचा। नहीं नहीं सर, 110 मैंने 10 सोचा था इसलिए। सोचा है? दिख रहा है क्या? 110 होगा ना सर? ये दिख अच्छा रहा हाँ है सर, 10 मैंने या 100? हाँ हाँ सर 100 सर, सॉरी। ठीक है, ये आपका 2000 अभी 21 हो गया ना? This 2021 and this will be your 2022. ऐसा ही होगा ऑलवेज? नहीं सर, वैल्यू कम होगी ना, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उस हिसाब से रेट कम होते हैं, राइट? That is what the Indian, यूएस डॉलर के साथ भी वो कंपेयर right? करते हैं। Yeah, यही सब इंडियन मेंटालिटी है, which is sick mentality, which is pathetic mentality. Okay, purchasing power of money घट रहा है, value of money कभी नहीं घटता, ठीक है? क्योंकि आप पैसे को सिर्फ सेव करना जानते हो, इन्वेस्ट करने का भी आपने सीखा ही नहीं, इसलिए आपको ये फिलॉसफी समझता ही नहीं।
ये तो 10% अगर एफडी में डाल दिया, अगर आप इवन सेविंग बैंक में रखोगे, IDFC बैंक है, कोटक बैंक है, there are few banks which pays 7% rate of interest. Am I right? In saving bank also. हाँ सर। तो कम से कम 107 रुपया तो ऐसे ही होगा हाँ कि सर। नहीं? तो फिर ये बेसिक है वो। सो अगर मैं इसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। सो फ्यूचर वैल्यू, यस सर। आया ना? हाँ सर। ठीक है, ये 2022 में हुआ। अगर मैं बोला कि 2023 में क्या वैल्यू होगा, फिर क्या करेंगे आप? या 2024 में क्या होगा, फिर क्या करेंगे आप? बता सकते हैं? हाँ सर, यानी 2022 में 110 पर हम लोग को वापस से 10% मिलेगा। जी, तो कितना हो ऐसे जाएगा? बढ़ता सर 11 रुपीज ज्यादा मिलेगा। हाँ, तो मतलब कितना हो जाएगा? 120 सर 121। यस। और 2024 में? ये मैं बेस बता रहा हूँ, कम से कम इतना तो होना ही 140 चाहिए आपका वैल्यू। अगर नहीं हो रहा है मतलब आपको फाइनेंस भी नहीं समझता है, इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है। या कितना हो जाएगा? 1 एब्सोल्युटली राइट। समझ में आया? ये वैल्यू क्या कर रहे हैं आप लोग? फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं। कैसे कंप्यूट कर रहे हैं? आप इंटरेस्ट हर एक साल का ऐड कर रहे हैं और उसको क्यूमुलेट कर रहे हैं। दिस इज नोन एज कंपाउंडिंग। हम क्या कर रहे हैं? कंपाउंड कर रहे हैं चीजों को, उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वी आर गेटिंग इट। यस और नो? आया ना? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे, अगर फॉर्मूला में लिखने जाएंगे तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस I रेज़ टू n। ओके, नाउ ओके सर। ये पूरे जो प्रेजेंट वैल्यू है ना, इसके लिए एक टेबल भी आता है, ओके, विच यू कैन जनरेट विद योर ओन। ओके, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ओके, ये या तो फॉर्मूला से आप कंप्यूट करो या तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर वही आएगा। प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। हाउ टू गेट दिस फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर? ये कैसे आता है? वेरी सिंपल, आप कंप्यूट कर सकते हैं उसको। ओके, या तो आपने जैसे अभी बोला मैन्युअली, सर हम ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, या तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आप कंप्यूट भी कर सकते हैं विद डिफरेंट रेट, विद द टाइम इंटरवल यू कैन गेट देयर फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। कैसे? कैलकुलेटर में ट्राई करो। हियर वी हैव assumed rate of interest as 10%. okay, it is compounding, so what I will do, 110 divide by 100 multiply by, so ये multiply by किया ना, so this has given me value for first year, which value? future value interest factor का value दे दिया। so अब मैं क्या करूंगा, rather than every year adding to that value, I will just multiply in present value with future value interest factor. तो अगर आप 100 में 1.1 ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो भी वैल्यू यही आएगा। यस और नो? 100 इंटू 1.1 करोगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है,
मल्टीप्लाई बाय किया मैंने, इक्वल टू करूंगा तो सेकेंड ईयर का वैल्यू आ गया। अभी 100 मल्टीप्लाई बाय 1.21 करो, देखो 121 आता है। यस और नो? हाँ सर। ठीक है, तो या तो आपने जैसा बोला था वो कर लो, या फिर इससे कंप्यूट करते जाओ तो भी आएगा। वापिस इक्वल टू करेंगे तो थर्ड ईयर का वैल्यू आएगा। लाइकवाइज जितने भी साल के बाद मुझे फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी चाहिए, आई कैन इजीली कैलकुलेट थ्रू कैलकुलेटर। कैलकुलेट कर सकते हैं, यस और नो? हाँ सर। यस सर। ठीक है, और एल्स we'll go to the book also. In book also this is given, but in the exam they will not give you this present value interest factor or future value interest factor this detail. They expect you to calculate, as someone has stated about annuity, when there is multiple flow, then this kind of data will get. When there is a single outflow of money, this kind of data we will get. Have you got it? 10%, first year 1, 0 year started with 0. This will be 1. First year 1.1, second 1.21, third 1.331. Are you getting yes or no? दिख रहा है आप लोगों को? समझा। यस ऐसे ही आते जाएगा। बट ये बुक आपको नोट एग्जाम में मिलेगी नहीं। सो आपको किससे कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए? कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने आना चाहिए। कैसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे? वंस अगेन, ओके, मैं सारा डिलीट कर देता हूं। अगेन आई एम टेलिंग यू फॉर फ्यूचर वैल्यू बी केयरफुल। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आप क्या करेंगे? अगर सपोज 108 रहता, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 7%, सपोज मैंने डाला है IDFC बैंक और समवेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, मैं क्या करूंगा? 107 डिवाइड बाय, चाहिए तो आप लोग नोटबुक में लिखते जाओ, मैंने बोला था आज से नोटबुक चाहिए। यस और नो? यस सर। तो लिखना चालू कर दो ये सर। मल्टीप्लाई बाय, तो फर्स्ट ईयर का क्या आ जाएगा? 1.07। यस और नो? यस सर। ठीक है, अभी सेकेंड ईयर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इक्वल टू 1.447 इक्वल टू 1.225। दिख रहा है? लेट मी चेक। 7% में यही वैल्यू आ रहा है, देखो आ रहा है ना? आ रहा था? आई होप अभी आपको फ्यूचर वैल्यू के बारे में समझ में आ गया। ओके, सो आज आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी एक हाइपोथेटिकल फिगर ले लेनी है और प्रैक्टिस करते जानी है कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, एंड इट्स नॉट ओनली विथ 10%, 7%, 8%, even 3.5% also you'll get the answer. ओके, अब मैं बोलता हूं मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? पीवी यहां ले लूंगा, फ्यूचर वैल्यू, ये जो फैक्टर है उसको डिवीजन करना पड़ेगा, ये जो कंपाउंडिंग था वो क्या हो जाएगा? डिस्काउंटिंग हो जाएगा, 1 + i⁻n। यस और नो? या मल्टीप्लाई है ना, प्रेजेंट वैल्यू इनटू ये है ना, तो अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। आया ना? हाँ सर। तो अभी हाँ, यहाँ सर। मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो मैं डिवाइड कर दूंगा उसको। ओके, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i⁻n। अब मैं चेक करता हूं कि मैंने जो बोला वो सही है कि नहीं। तो अभी तुम क्या कर रहे थे? 110 डिवाइड बाय 100 कर रहे थे। यस और नो? हाँ सर।
अब मैं उल्टा करूंगा. Now I will do reverse for future value. I will do 100 divide by 110. अब डिस्काउंटिंग आएगा. 1 पॉइंट आंसर नहीं आएगा, 0 पॉइंट आंसर आएगा मेरा. इट इज डिस्काउंटिंग, रिवर्स जा रहा है. ओके, इक्वल टू, दिस इज द वैल्यू फॉर फर्स्ट ईयर. सो नाउ आई एम गेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू. ओके, तो यहाँ पे या तो आप ये फॉर्मूला से जाओ या तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो भी आंसर आना चाहिए. तो लेट मी सी 133 रुपीज आता है कि नहीं. This is the future value of 100 after with the rate of 10% after 3 years. This is future value of present money of 100, yes or no? With rate of interest 10. हाँ सर. तो वही अगर मैं यहाँ अप्लाई करूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू आना चाहिए. This 133 should be 100. आना चाहिए कि नहीं लॉजिकली. तो लेट मी सी वेदर इट इज कमिंग और नॉट. सो आपने क्या करना है, 100 डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय, दिस इज द वैल्यू फॉर फर्स्ट ईयर. ऐसा मुझे कितने साल तक करना है, 3 इयर्स तक करना है. इक्वल टू सेकेंड ईयर, इक्वल टू थर्ड ईयर. अभी मैं मल्टीप्लाई करूंगा. ठीक है, $133 with 3. Point 1 मल्टीप्लाई बाय, क्या है वैल्यू मेरा, 0.7513. 4 डिजिट लूंगा तो आ जाएगा 0.7513. ठीक है, मल्टीप्लाई करो, देखो दिस मल्टीप्लाई बाय 1.333. कैलकुलेटर में ही कर रहा हूं. आया 100. हाँ सर. सो इधर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी चाहिए तो भी मुझे मिल सकता है, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू मनी चाहिए तो भी आ सकता है. फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी के लिए आपको क्या करना चाहिए, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कंपाउंडिंग करना पड़ेगा. और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा. डिस्काउंटिंग. देखो 10% पे अभी यही वैल्यू आ रहा था ना. 1 फर्स्ट ईयर के लिए 0.909, 826751 से मल्टीप्लाई किया था अभी हमने, हाँ या ना, विथ रेट ऑफ 10%. सो कोई भी चीज आ सकती है. नाउ लेट अस गो बैक टू आवर सिलेबस. आज ज्यादा कुछ नहीं करना है, आज सिर्फ यही प्रैक्टिस करनी है आपको. टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए क्या करनी है, कोई भी एक हाइपोथेटिकल फिगर ले लेनी है और फिर उसका प्रैक्टिस करना है कि इसका फ्यूचर वैल्यू क्या है. ओके, इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है विथ अ डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट. लेट्स से फॉर एग्जांपल I have given some values here Practice. for practice. Let me see. Okay, sir. Okay. Or rather multiplying with money also, if you can get me this, a different rate of interest, sorry, a different rate of interest, जो अभी मैं आपको सिखा रहा था, तो भी मेरा पर्पस आज के लिए सॉल्व होगा. राइट, जैसे हमने अभी 10% का एग्जाम्पल देखा, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. 7% का एग्जाम्पल देखा,
वैसे डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज पे आपको एग्जाम्पल कोड करनी है और आपको वैल्यू सेट करनी है. What will be the future value of present money if 10% of 10,000 at 10 years or 20 years or 15 years or 12 years, what will be the value? That we need to get. Suppose मैंने बोला कि present value है kindly rejoin so that we can do the practice of few illustrations with same login ID password. मैं अभी बता रहा हूँ सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू है 3000. ओके सर. ठीक है 6% after 5 years. What will be the future value? ऐसे करके अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा. And I need your future value answer here. Okay, so we'll compute and you will get me the answer. Okay, that practice session is required. Then only I will get confidence that you have understood this concept. Am I right? So kindly rejoin with same login ID password.